آج ہم نے آپ کو یہاں تکلیف دی، ایک خاص ایونٹ تھا، نوجوان ساتھی ایک آج اس جماعت میں فارملی جوائن کیا، جبران ڈار صاحب نے، تو ہم سبھی سینئر قیادت اپنی پارٹی کی انہیں ویلکم کرتے ہیں اس جماعت میں۔ آج اس خوشی کے موقع پہ جہاں جبران ڈار صاحب کی شمولیت کو ہم سب خوشی کے طور پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہیں ہمارے لیے غیر مناسب ہوگا کہ ہم آج وہ چیزیں نہ ڈسکس کریں آپ کے ساتھ اور آپ کے ذریعے سے بھارت کے وزیر اعظم، بھارت کی سرکار، بھارت کے ہوم منسٹر تک یہ چیزیں پہنچائے جن کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم کھڑا ہوا ہے۔ اپنی پارٹی جو 2020 8 مارچ کو قائم ہوئی، وہ کسی خاص فرد یا کسی خاندان یا کسی شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، نہ کسی کو اقتدار سے اتارنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ یہ اگر کھڑی ہوئی اور یہ اگر وجود میں آئی، یہ اس لیے آئی کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے جو پچھلے 75 سال سے یہاں مصیبتیں دیکھی ہیں ان کو اس میں سے نکالیں۔ خاص کر 5 اگست 2019 کو جو ثانیہ ہم پہ گرا، جس کی وجہ سے ہماری پہچان، جسے ہم اسٹیٹ ہوڈ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری میں کہتا ہوں کہ وجود، جسے 370 اور 35A کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہماری علیحدگی جو ہماری انڈیویجولیٹی تھی وہ مینٹین تھی، اس کو ختم کیا گیا اور ہمارے ہزاروں نوجوانوں اور بزرگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا۔ مجھے یہ کوئی شرم نہیں ہے کہ میں پہلے شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ 3200 لوگ ہمارے کہنے پہ اس پارٹی کے وجود میں آنے کے بعد، جب ہم مارچ 2020 میں ہندوستان کے وزیر اعظم اور ہوم منسٹر سے ملے، رہا ہو گئے، لیکن ابھی ہزاروں نوجوان جیلوں میں ہیں، ابھی کئی سیاسی قائدین جیلوں میں ہیں۔ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ نے، کہتے ہیں نا، روشنی کی کرن ایک ہمارے لیے دکھائی، ایک انصاف کا دروازہ کھولا۔ وہ یہ تھا کہ پرولونگڈ ٹرائل کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ کوئی جوازیت نہیں ہے کہ لوگوں کو جیلوں میں رکھا جائے۔ انہوں نے جناب شبیر احمد شاہ کے ریلیز کا حکم سنایا، جہاں ہم اسے ویلکم کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ باقی جو صاحبان جیلوں میں ہیں، ان کیسوں میں، انہی جیسے کیسوں میں جن میں ٹرائل ابھی 8-10 سالوں سے چل رہی ہے اور کہیں کوئی نہیں پہنچ، سب کو بیل دی جائے اور تاکہ وہ بھی اپنی گھروں میں واپس آ کے یہاں لوگوں میں ایک خوشی کا احساس محسوس ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ کہنے میں بھی کوئی کھیت نہیں ہے کہ ابھی بھی نوجوانوں کے ویریفیکیشنیں بند ہے، ابھی بھی نوجوانوں کی پکڑ دکڑ جاری ہے، ابھی بھی نوجوانوں کی ویریفیکیشنیں، جو نوکریاں خود اپنے میرٹ پہ حاصل کر رہے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں دی جا رہی ہیں۔ تو آج ہم پھر اپنی پرزور اپیل کریں گے گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ ہم کوئی نئی بات نہیں مانگ رہے ہیں، ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے وعدہ کیا۔ وزیر اعظم صاحب آپ نے وعدہ کیا، ہوم منسٹر صاحب آپ نے وعدہ کیا کہ ہم جموں کشمیر کے نوجوانوں، جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے۔ میں آپ کی وساطت سے زور دیتا ہوں آج وزیر اعظم ہند سے کہ ڈائلاگ از دی اونلی آپشن وتھ اس، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں نے امن کا راستہ چن لیا ہے، جو ہم نے پچھلے 5 سال میں دیکھا ہے، 6 سال سے۔ لیکن ریسپروکیشن of Government of India, Delhi has to respond, so I request Government of India to respond. ہم سب اس ملک کے ناگرک ہیں اور ہمارا کنٹریبیوشن کوئی کم نہیں ہے اس ملک میں، اس لیے ہم گزارش کریں گے یہ فوراً سے فوراً شروع کیا جائے۔ جب میں بات کرتا ہوں
भारत सरकार की, मैं वहां जरूर ये मेंशन करना चाहूंगा। 18 महीने पहले यहाँ एक इलेक्शन हुआ जो सुप्रीम कोर्ट के डेट तयन करने के बाद मुनक्कद हुआ। लोगों ने फैसला दिया, हमारी जमात कोई कामयाबी नहीं हासिल कर सकी। बिल्कुल हमें कोई ये नहीं है, लोग मजाज हैं, डेमोक्रेसी का मतलब यही है। लेकिन आज 18 महीने हो गए हैं, पहला 1 साल तो हम चुप बैठे, हमने कहा नई सरकार है, नए दिन है। लेकिन आज 18 महीने के बाद हमें समझ नहीं आ रहा क्या सरकार है या सरकार ही नहीं है। शायद लोगों को लगता था कि जब यहाँ गवर्नर राज था, लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज था, उसमें अकाउंटेबिलिटी शायद ज्यादा थी। आज लोगों को हर चीज का जवाब इससे दिया जाता है, ये मेरे हद इख्तियार में नहीं, ये मेरे हद इख्तियार में नहीं। एलजी साहब हो या चीफ मिनिस्टर साहब हो, अब आप अपनी जगह ये तयन करिए ये किसके हद इख्तियार में है, लेकिन लोगों के मसले तो हल करिए। आज 18 महीने हो गए, जो वादे उस जमात में किए थे कि हम 1 लाख नौकरियां दे देंगे, हम 1,10,000 डेली वेजरों को मुस्तकिल करेंगे, अभी भी कमेटियां बन रही हैं। आए दिन हम सुन रहे हैं कमेटियां बन रही है। अफसोस से कहना पड़ता है, वो डेमोक्रेसी में जिसे कहते हैं ना, डेमोक्रेसी का मंदिर जो होता है वो असेंबली होती है, वहां क्या नाच नगमा होता है हम सब देखते हैं। ठीक है, हर असेंबली में होता है, मैं नहीं कहूंगा जम्मू कश्मीर की असेंबली में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के मफाद की बातें भी होती हैं, लोगों के मफाद की बिलें भी पास होती हैं। यहां हमारे नौजवान तरस रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, नौकरियां जो कहते हैं निकालेंगे वो भी हक वालों को नहीं मिलती हैं। रिजर्वेशन हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी है इस जमात की कि रिजर्वेशन शुड बी एज पर पॉपुलेशन। 70% आबादी को 30% जॉब और 30% आबादी को 70% जॉब, ये इंसाफ नहीं है। और इस इंसाफ के खिलाफ हमने पहले भी, नाइंसाफी के खिलाफ हमने पहले भी लड़ा, अब भी लड़ते हैं। कमेटियां, एक कहता है मैंने एलजी साहब को भेजा है, दूसरा कहता है मैंने वहां साहब भेजा। अब हमें उम्मीद हुई थी कि एक नौजवान लीडर निकला था, उसे लोगों ने इलेक्ट किया था, यहाँ मेंबर पार्लियामेंट भी, उसने कहा था मैंने ये बेड़ा अपने सर उठा लिया है। लेकिन शायद दूर के डोल साहब ने, वो भी दूर का डोल ही निकला, कुछ लोगों को कुछ नहीं। अपनी जमाती सियासत ठीक है उनकी, लेकिन नौजवानों के लिए अगर कुछ करना है तो कब करेंगे? क्या जब वो ओवर एज हो जाएंगे उसके बाद? ये शहरी श्रीनगर के लोग जिनका और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कब तक ये इंतजार करेंगे? एक और बड़ा जो अहम नुक्ता है, मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, हर चीज पे कहा जाता है हम ये करते तो पैसा नहीं है, हम वो करते तो पैसा नहीं है। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई, आपने देखा होगा 7,000 करोड़ के करीब क्या हमने खर्चा ही नहीं किया। खर्चा नहीं किया, एक जब खर्चा नहीं किया तो अगले साल इतना बजट में से कटेगा। एक तरफ से आप कहते हो भारत सरकार की बड़ी मदद की कि उन्होंने एडिशनल दे दिया, दूसरी तरफ से आप लोगों को आप एक्सपेंसेस नहीं करते हो। जो काम है वो वहीं पड़े हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उनको उठाया नहीं जाता है, जिनकी कोई इफादियत ही नहीं है उन पे पैसा लगाया जाता है। यहां डेवलपमेंट को इस बेसिस पे किया जाता है कि एक जमात, लोगों ने जहां एक जमात रूलिंग पार्टी के हक में वोट दिया है वहां पे कहाँ डेवलपमेंट की जाती है। ड्रेन, ये डेवलपमेंट, हम यहाँ डेवलपमेंट उसको नहीं कहते हैं जो पूरे भारत में होती है, हम तो यहाँ डेवलपमेंट अभी ड्रेन को कहते हैं, अभी मैग्नेटाइजेशन को कहते हैं, अभी सिटी लाइट्स लगाने को कहते हैं। यहाँ जहां इस बेसिस पे जो जरूरी चीजें हैं वो दी जाए तो वहां इंसाफ क्या होगा?
कल ही दुनिया की सियासत में एक बहुत बड़ा दिन था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सीज फायर अमेरिका और ईरान के दरमियान हो गया। जिन्होंने ये कोशिशें की हम उनकी भी सराहना करते हैं, लेकिन इस सीज फायर को परमानेंट किया जाए ताकि इंसानी जानें जहां जहां जा रही हैं इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करें। उनको न इस बेसिस पे ट्रीट किया जाए वो किस मुल्क से हैं, वो किस मजहब से हैं, वो किस फिरके से हैं। हम सब इंसान हैं और वही हमारी कॉमनैलिटी है। हम वेलकम करते हैं क्यों हमने मारदाट देखी है, हमने अमवात देखी हैं, हमने अपने प्यारों को बिछड़ते हुए देखा है और हमें ये बहुत दुख है कि जहां जहां इंसानी जानें तलफ हो रही हैं। हमें उम्मीद है कि ये सीज फायर अब परमानेंट होगी और दुनिया में एक अमन का निज़ाम और शांति का निज़ाम फिर। मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर मैं ये ना कहूँ तो मैं शायद जम्मू कश्मीर के किसानों, खासकर जम्मू कश्मीर के हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करूँगा। आप देख रहे हैं हर साल, अब पिछले कुछ जो 4-5 साल हुए, जालाबारी होती है। जालाबारी से फ्रूट क्रॉप डैमेज होती है। फ्लावरिंग स्टेज पे वो फ्लावरिंग स्टेज डैमेज होता है, अगर फ्रूट बना है तो फ्रूट डैमेज होता है। सरकार कहती है, मिनिस्टर दौड़ते हैं, अफसर दौड़ते हैं, लेकिन कब? जब नुकसान हुआ होता है और कुछ दिन गुजर गए होते हैं। इसमें एक मैकेनिज्म होना चाहिए था। अगर कहीं पे भी डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, दूसरे दिन पटवारी जाएं, ये एक नुकसान का तखमीना लगाएं और एक प्रोसेस के जरिए। इसमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी कि मिनिस्टर का दौरा और दूसरों का दौरा। वो ठीक है, पॉलिटिकल दौरे उनके वेलकम है, तो उसमें सियासत ही होती है, उसमें किसान को कुछ मिलता नहीं है। मैं सुझाव देना चाहूंगा, वैसे तो यहाँ की सरकार कोई सुझाव सुनती नहीं है। एक पैरेलल में चल रहा है यहाँ जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स दे रहे हैं, उसमें हेल नेट से दे रहे हैं 50% सब्सिडी। जो पुराने ऑर्चर्ड्स हैं उनमें भी दे दें, तो हॉर्टिकल्चर अगर उनको भी 50% सब्सिडी पे दिया जाएगा, एक बार ही ये सब कवर हो जाएगा। बार बार के बाकी तो अल्लाह जब नुकसान पे आता है वो तो हेल नेट के बाद भी नुकसान होगा जो किस्मत में होगा, लेकिन उसके लिए तो हमारा ईमान काफी है, तो फिर हम वो बर्दाश्त करते हैं।